Hello everyone. Today we will be discussing some numericals based on work done. So in previous days we have seen the formulas of work done. Today I have brought some numericals for you. In order to solve these numericals, you need to remember three things or three key points you need to remember, or you can say formulas. So first formula will be work done is nothing but a product of force and displacement. Work done is nothing but the product or multiplication of force and displacement. W equals to F into S. But it is only applicable, but W equals to F into S is only applicable when the direction of force and displacement is in the same direction. So if you have to apply W equals to F into S, that is the product of Fs simply, then you need to remember one thing, that in that case force would be in the direction of displacement, then only you can apply W equals to F into S. The first thing. Second thing, if there is an angle between the force and displacement, then you need to remember that W equals to Fs cos theta. W equals to Fs cos theta, where theta is nothing but the angle between the force and displacement, that is this. S means displacement. W equals to Fs cos theta, and here theta is the angle between the force and displacement. The third thing is work done is nothing but the product of dot product of force and displacement. If there is two vector quantity, first one is force and there is displacement, if we do the dot product between force and displacement, we will get what? Work done. So W equals to nothing but the dot product of force and displacement. That's why work done is a scalar quantity. F vector dot S vector. These all things are already discussed in my previous lectures. So today we will be only focusing on the numericals based on these formulas, and these three formulas will be applicable. Instead of three, I would like to say these two things. Two formula will be based on the work done by a constant force. Work done by a constant force. So let's see what the numericals are there. आज शुरू करने से पहले कुछ कहना चाहता हूँ कि प्रीवियस जो हमारा लेक्चर हुआ करता था वो बंगाली लैंग्वेज में होता था, बट आज से हमारा जो चैनल में लेक्चर्स अपलोड होगा वो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा. सो बाइलैंग्वेज बोल सकते हैं हम लोग, बट बंगाली में नहीं होगा. मेरा हिंदी थोड़ा कमज़ोर है, वीक है, बट ठीक है, जब जब अपलोड करता रहूँगा तो मेरा भी इम्प्रूव होता रहेगा. ओके, लेट्स सी the first problem is there. A body of mass 5 kg, a body of mass 5 kg is placed at the origin, okay, and can move only on the x-axis. Okay, so let's draw a Cartesian axis. So this is generally x-axis horizontal and this vertical is y-axis. So यहाँ पे कह रहा है कि एक 5 kg का बॉडी और ऑब्जेक्ट था, एक 5 kg का ऑब्जेक्ट का. सो इस 5 kg का ऑब्जेक्ट को हम लोग ओरिजिन में प्लेस कर रहे हैं. इस ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे प्लेस कर रहे हैं? एक ओरिजिन पे इस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं? प्लेस्ड कर रहे हैं. दिस बॉडी इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन. सो यू ऑलरेडी नो दैट दिस इज कॉल्ड एज ओरिजिन O. Can move only on the x-axis. This body of having mass 5 kg can only be displaced in the x direction. इस बॉडी को हम लोग सिर्फ x एक्सिस के along डिस्प्लेस कर सकते हैं. मीन्स इस बॉडी सिर्फ हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस होगा. ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन नहीं, ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन इट. इस बॉडी के और ऑब्जेक्ट के ऊपर 10 न्यूटन का एक बॉल और फोर्स अप्लाई हो रहा है. इस ऑब्जेक्ट के ऊपर 10 न्यूटन का एक फोर्स अप्लाई हो रहा है. F इक्वल्स टू 10 न्यूटन इन ए डिरेक्शन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस. यहाँ पे कह रहा है कि ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है 10 न्यूटन, वो एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है. थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री. थीटा इक्वल्स टू हाउ मच? 60 डिग्री. And displaces it along the x-axis by 4 meter. This body of having mass 5 kg is displaced
in the horizontal direction by 4 meter. So this displacement is nothing but 4 meter. 4 meter. क्वेश्चन में हम लोगों को आस्क कर रहा है कि द वर्क डन बाय द फोर्स, इस फोर्स ने कितना वर्क डन किया है. सो इस न्यूमेरिकल में बेसिकली बोल रहा है कि एक कार्टेशियन एक्सिस एक्स और वाई एक्सिस के ओरिजिन में हम लोग 5 kg का एक ब्लॉक प्लेस कर रहे हैं, उसको एक्स एक्सिस के अलोंग 4 मीटर डिस्प्लेस कर रहे हैं, और जो फोर्स लग रहा है यहाँ पे 10 न्यूटन का, वो डिस्प्लेसमेंट के साथ 60 डिग्री एंगल कर रहा है. तो ये फोर्स कितना वर्क डन करेगा. So how to solve such numericals? First thing, here force and displacement is not in the same direction. यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही एंगल में नहीं काम कर रहा है. थीटा यहाँ पे 0 डिग्री नहीं है, थीटा कितना है 60 डिग्री. सो इन दैट केस वी कैन से दैट W इक्वल्स टू हाउ मच, W इक्वल्स टू वी हैव ऑलरेडी सीन एफ एस कॉस थीटा. Sorry, this is S, okay. W equals to F S cos theta. W equals to F S cos theta. So here the force is how much? 10 Newton force is applied. 10 Newton force is applied. And displacement here is 4 meter. Displacement is 4 meter. And cos theta, theta is the angle between force and displacement. The angle between force and displacement is how much? Theta equals to, clearly mentioned that 60 degree. So I have put down all the magnitude, that is magnitude of force, displacement and theta. So we can say that 10 4 the 40 cos 60, that means half. Cos 60, that means 1 by 2. And Newton meter is already, we can say that Newton meter is also known as what? Joule. Newton meter को हम लोग क्या कहते हैं? Joule. So here answer will be 20 joule. This is 2, okay. 20 joule. So the answer is 20 joule. So this force मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन, ये 10 न्यूटन का जो फोर्स है वो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर 20 जूल का वर्क डन कर रहा है. So I hope it is clear for you. We will be seeing the next problem. Next problem is saying that a force F 5I plus 3J Newton is applied over a particle which displaces it from its origin to the point r equals to 2I minus 1J vector meter. The work done on the particle is. So you can see that here force is in the vector form, and also there is a position vector r. So we have already seen that work done is nothing but the dot product of force and displacement. If there is a two vector, force and displacement, and if we do the dot product between them, then we will get what? Work done. So work done is nothing but dot product of force and displacement. F vector dot is vector. So F vector is how much? 5I vector plus 3J vector. 5I plus 3J. 5I plus 3J. And S or position vector, we can say that here S vector means R vector, that is position vector. R vector is how much? 2I plus J vector. Sorry, here is not plus, that is minus J vector. So dot product means what? We will be multiplying this coefficient of I vector J vector. So 5 to the 10. 10
this plus and this minus will be minus 3 into here 1 is there, no, so these 3 will be multiplying with this 1, so minus 3, then we will be getting what, 7 joule. Here force in the SI unit and R is also in the SI unit, so work will be in the SI unit, that will be the joule. So here we will basically what we are doing, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं. डॉट प्रोडक्ट करने के बाद हम लोगों को रिजल्ट में क्या मिलेगा, वर्क डन मिलेगा. सो अगर तुम लोगों को क्वेश्चंस में फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का कोई वेक्टर फॉर्म दे रहा है कि 5i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर ऐसे करके, तो तुम लोग क्या करना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट कर देना. डॉट प्रोडक्ट करने के बाद तुम लोगों को क्या मिल जाएगा, वर्क मिल जाएगा. यहाँ पे सेम न्यूमेरिकल्स था ना, पैटर्न वो क्या था कि फोर्स का भी एक वेक्टर फॉर्म में था, दैट इज एफ वेक्टर इक्वल्स टू हाउ मच, एफ वेक्टर इक्वल्स टू 5i कैप. यहाँ पे क्या था, फोर्स एफ इक्वल्स टू 5i कैप प्लस 3j कैप and r equals to, r means what, displacement. यहाँ पे clearly mention है कि which displaces it from its origin to the point r equals to 2i cap minus 1j cap meters. So here r means was displacement. So work done पूछ रहा था तुमको, तो तुम क्या करोगे इसमें, यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट कर देना और अल्टीमेट रिजल्ट में तुम लोग क्या मिल जाएगा तुम लोगों को, वर्क डन. So I hope this is clear for you. So let's see the next problem. यहाँ पे क्या कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड फॉर ए ब्लॉक ऑफ 10 kg मास स्लाइडिंग ओवर ए रफ सरफेस. द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन 1 मिनट. सो बेसिकली इस प्रॉब्लम में पहले जो प्रॉब्लम फर्स्ट प्रॉब्लम में किया था उसमें भी मास था और इसमें भी मास है, तो मास यहाँ पे कुछ काम नहीं आएगा. ये मतलब क्या बोलते हैं इसको, एक्स्ट्रा डेटा है, ये तुम लोगों को कोई काम नहीं आएगा, फिर सिर्फ फोर्स काम आएगा. ठीक है, सो ये सरप्लस डेटा को तुम लोग अवॉइड कर सकते हो. सो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ वेलोसिटी. सो वेलोसिटी इज गिवन इन दैट केस, दैट इज v इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड. एंड वी ऑलरेडी नो दैट velocity is what, velocity is the nothing but the rate of change of displacement. Rate of change of displacement is known as what, velocity, means per unit time, displacement per unit time. We can say that velocity is nothing but the displacement per unit time. So v equals to s by t, so s by t equals to 2, so s equals to how much, s equals to 2t, 2 into t, s equals to 2 into t. यहाँ पे t मतलब टाइम, टाइम कितना है 1 मिनट, 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड, सो 2 into 60 सेकेंड. v का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, नो, सो इंस्टेड ऑफ 1 मिनट we'll convert this 1 minute into second, and we all know that 1 minute means 60 second. So s equals to how much, s equals to 120 meter. S equals to, or displacement equals to 120 meter. So force is how much, in this numerical we have seen that force equals to 5 newton. यहाँ पे force कितना था, force था 5 newton, no, force कितना था, force 5 newton था. मेरा s और 5 एक ही हो जा रहा है, सो यहाँ पे थोड़ा फोकस करना. यहाँ पे f इक्वल्स टू कितना, 5 न्यूटन, s कितना मिला, 120 न्यूटन. देन व्हाट विल बी द वर्क डन, वर्क डन वी हैव ऑलरेडी नो दैट, we already know what, that work done is nothing but the product of force and displacement. So f into s, w equals to f into s. f is how much, 5, s is how much, 120. That means 600 joule, 600 joule, 600 joule. So I hope ये तुम लोगों को समझ आया. तो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम में विजिट कर रहे हैं, प्रॉब्लम नंबर 4. यहाँ पे कह रहा है कि ए 10 kg सैटेलाइट completes the revolution around the earth at a height of 100 km in 108 meters. The work done by the gravitational force of earth will be. देखो होता क्या है कि
यहाँ पे तुम एज्यूम करो कि ये अर्थ है, ठीक है, ये क्या है, ये अर्थ है। ओके, लेट मी ड्रॉ द अर्थ प्रॉपरली। सो ये क्या है, ये अर्थ है। इस अर्थ के अराउंड एक सैटेलाइट घूम रहा है। अ सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड दिस अर्थ। सो यहाँ पे इस एलिप्टिकल पाथ में, इंस्टेड ऑफ एलिप्टिकल यू कैन से दैट राउंड, इस सर्कुलर पाथ पे क्या हो रहा है, एक सैटेलाइट मूव कर रहा है। तो यहाँ पे बहुत डेटा दिया है कि मास ये है, हाइट इतना है 100 किलोमीटर की। सैटेलाइट का मास कितना बोला है तुम लोगों को, मास कह रहा है कि सैटेलाइट का जो मास है वो है, इस सैटेलाइट का कितना मास है 10 kg, जो एक सरप्लस डेटा है, हम लोगों को कोई काम नहीं आएगा इस प्रॉब्लम में। अराउंड द अर्थ एट अ हाइट ऑफ 100 किलोमीटर मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड satellite is 100 kilometer. That is also not needed in that case. In order to solve this problem, this is not required. No, why you will be seeing that, why I am telling that one 100 kilometer. So actually what happens when this satellite is moving around this earth, ये सैटेलाइट जब इस अर्थ के अराउंड में मूव कर रहा है तो इस सैटेलाइट का जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो टेंजेंट बराबर होगा। ये जो सर्कल तुम लोग देख रहे हो इसका टेंजेंट बराबर, इसका टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी वेक्टर काम करता है। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन, नो, ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी इन दैट डायरेक्शन। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू रेडियली इनवर्ड। देखो एक बार फिर से यहाँ पे मैं पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पे थोड़ा हौच-पौच हो जा रहा था। ये अर्थ है, अर्थ के अराउंड में एक सैटेलाइट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। कहाँ सैटेलाइट लो, यहाँ पे ले लो। अर्थ के अलोंग एक सैटेलाइट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। सैटेलाइट जब अर्थ के अलोंग मूव करता है ना, तब जो उसका वेलोसिटी वेक्टर है वो टेंजेंट बराबर काम करता है। v विल बी एक्टिंग इन दिस टेंजेंट, इन दिस ये टेंजेंट के अलोंग क्या करता है, ये जो वेलोसिटी वेक्टर वो काम करता है। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ऑफ द अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो रेडियली इनवर्ड काम करता है। Fg विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, नो, Fg विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। सो ये क्या डायरेक्शन है, ये जो वेलोसिटी वेक्टर और F वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर इंस्टेड ऑफ वी कैन से दैट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, the angle between them is how much, 90 degree. The angle between these two will be how much, 90 degree. So यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 90 डिग्री में एक्ट कर रहा है। So we all know that W equals to Fs cos theta, Fs cos theta, no, so theta is how much, 90 degree, W equals to Fs cos theta, W equals to Fs cos theta, here theta is 90 degree. So cos theta means cos 90, cos 90 means how much, 0. So this is basically a no work condition, no, there will be no work done. यहाँ पे कोई काम ही नहीं हो रहा है, फिजिक्स के में कोई काम ही नहीं हो रहा है यहाँ पे, वर्क डन विल बी हाउ मच, 0. सो एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ कि जब कोई सैटेलाइट एक अर्थ के अराउंड में घूमता है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो टेंजेंट बराबर होता है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ है वो रेडियली इनवर्ड, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो मतलब एंगल है वो 90 डिग्री इन दैट केस। सो थीटा विल बी 90 डिग्री, सो W इक्वल्स टू हाउ मच, 0. सो दिस 4 प्रॉब्लम्स आई हैव ब्रॉट फॉर यू। इन नेक्स्ट लेक्चर विल बी डिस्कसिंग ऑफ द वर्क डन, आप लोग वर्क डन कंटिन्यू करेंगे, और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो 4 प्रॉब्लम था वो बेस्ड था किस पे, वो बेस्ड था वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स। यहाँ पे फोर्स क्या था, कांस्टेंट था, बट अगले लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर फोर्स वेरिएबल होगा, अगर फोर्स चेंज होता रहेगा तो कैसे हम सॉल्व करें, वो भी हम लोग देखेंगे। तो तब तक के लिए बाय। और मैं फिर से एक बात कह रहा हूँ कि मेरा हिंदी थोड़ा प्रॉब्लम है, उतना इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हिंदी नहीं बोल सकता, बट ऑब्वियसली जब टाइम जब गुजरेगा तो मेरा भी इम्प्रूव होता रहेगा। बाय देन, ओके।